Hi, good morning, good evening, everyone. Am I audible to you? Hello, am I audible to you? Okay. Welcome. I welcome you all on this online workshop titled Income Tax Laws and E-Filing Returns. This workshop is presented by Maharaja Agrawal Institute of Management Studies, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, in collaboration with PGDAV College Evening, affiliated to University of Delhi. So it is a 7-day online workshop. The timings will be 3:30 p.m. daily, and there will be three resource persons. I'm also one of the resource person. My name is Sushri Garg, Assistant Professor, Department of Commerce. So in today's session, we'll discuss basically about the basic concepts, some definitions, and some rules and regulations which you all must know in order to calculate your income tax. So I hope many of the students have joined. Please ask your classmates and other participants to join. Okay, so before starting the session, I just want to share some things with you that there will be attendance of the students or participants at the end of each session, and there will be also quiz or MCQ based assessment for you all at the end of each session. So you all listen the session carefully and go for assessment, and on the basis of your assessment evaluation and assignments and your attendance, you will get your certificates. Okay, so is my screen visible to you? PPT दिख रही है सबको? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स क्या है. पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट विल बी योर लर्निंग आउटकम फ्रॉम दिस सेशन. From today's session, you will be able to know about the meaning of tax and various types of taxes. You will be able to learn about the difference between direct and indirect tax, and you will be able to know about the components of income tax law, and you will also be able to understand the procedure for computation of total income for the purpose of income tax, and you will also get to know about the meaning of important terms which we use in the income tax. According to Income Tax Act 1961, you will be able to know about the previous year and assessment year for calculating income tax. According to Income Tax Act 1961, you will be able to know about the circumstances when the previous year income will be accessed in the tax in the previous year itself, and you will be able to know about the various slab rates for this previous year and assessment year, and you will be able to know about how to calculate or determine the tax liability of a person. So let's start.
So if I talk about the basic concepts which we are going to discuss today, so what all we will cover the various components of income tax law. For example, your Income Tax Act 1961, your Annual Finance Act, income tax rules, circulars and notifications, and legal decisions. Then we'll in detail discuss about the steps for computation of total income and your tax liability. So step by step, we have to calculate your incomes. Then we have to go for slab rates. That according to person, according to your income, कौन से percentage से आपको tax pay करना है. And we also discuss about the important definitions कि एसएससी कौन होता है, असेसमेंट क्या होता है, पर्सन कौन होता है, इनकम क्या है, इंडिया क्या है. We will discuss all these terms in accordance with Income Tax Act 1961. We all know कि इंडिया क्या है, we all know कि पर्सन क्या होता है, लेकिन according to different laws, in different scenarios, किसी भी concept की definition change होती रहती है. We'll also get to know about the charge of income tax and the rates of income tax. Next, सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो let's talk about what is tax. So, what is tax? If I talk about the basic meaning of tax, it is a fee. It is a fees charged by government on a product, income और activity. अगर हम टैक्स की बात करें तो ये इनकम पर भी लगती है, किसी प्रोडक्ट पर या किसी एक्टिविटी पे. इट इज बेसिकली अ फी जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है. एंड बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. वन इज योर डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज योर इनडायरेक्ट. As the name suggests, direct tax मतलब it is directly levied on the income or wealth of a person. तो आप directly आपके पास है या जो आपकी इनकम है उसके ऊपर आपको डायरेक्टली टैक्स पे करना होता है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल योर इनकम टैक्स. एंड अदर वन इज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? दीज आर levied on basically on the prices of a goods or services. और ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट होते रहते हैं. द पर्सन पेइंग द टैक्स passes on the incidence to another person. For example, your GST and custom duties. अगर हम बात करें कि why are taxes levied, कि हम टैक्सेस क्यों लगाते हैं, तो बेसिकली ये एक फीस है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू. It is a major source for government's revenue. The reason for levy of taxes is that they constitute the basic source of revenue to the government. The revenue generated is utilized for meeting the expenses of government. For example, defense हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया. तो गवर्नमेंट जितने भी फंड्स जो है वो हमसे रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड देन स्पेंड इट ऑन फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. है जो भी उसके एक्सपेंसिव है वहां से वो उन्हें पे करती है. अब हम बात करते हैं पावर टू लिवाई टैक्सेस कि इंडिया में किसके पास पावर है टैक्सेस लेने की. So Constitution of India gives the power to levy and collect taxes, whether direct or indirect. ये दोनों ही चाहे टैक्सेस हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे डायरेक्ट हो, दोनों ही टैक्सेस हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है. The union and state government are empowered to levy taxes by virtue of Article 246 of Constitution of India. ठीक है. आगे बात करते हैं. इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है, हमारा डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा है. The Constitution of India has given power to central government to levy taxes on income rather than एग्रीकल्चर इनकम. तो हमारी जितनी भी इनकम्स होती हैं उसके ऊपर हमारे को जो टैक्स पे करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैज द पावर टू levy tax. In the important point here is जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज कंप्लीटली टैक्स. अब हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया कि इनकम टैक्स लॉज के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हैं जो हमें कवर करनी है. ये लॉज कौन बनाता है, इन्हें नोटिफाई कौन करता है, इनका सर्कुलर कौन निकालता है, उनके रूल्स कौन बनाता है, इससे रिलेटेड डिसीजंस कौन लेता है. तो ये सब चीजों की अगर हम बात करें तो वी हैव वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लॉ विच आर रिलेटेड टू इनकम टैक्स. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट, तो वी हैव इनकम टैक्स एक्ट जो कि हमारा स्टार्ट हुआ था इन 1961. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 1 अप्रैल 1962 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था. इसके अंदर 298 सेक्शंस हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं.
तो देखिए, जो सेक्शंस हैं और जो शेड्यूल्स हैं, ये सब हमारे जनरल लॉज, प्रोविजंस, शेड्यूल्स, इन सब की बातें करते हैं। तो देखो, जैसे एक सेक्शन में एक सेक्शन के सब सेक्शंस भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं, सब क्लॉजेस भी हो सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल गिवन है, द क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 2 डिफाइन द मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो उसके क्लॉजेस में हमारी कुछ डेफिनेशंस दी हुई है टर्म्स की। फॉर एग्जांपल, आपकी एग्रीकल्चर इनकम क्या है एंड अमलगमेशन क्या है, इस तरह से। लाइकवाइज क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 10 कंटेन द एग्जेम्पशंस। अगर हम एग्जेम्पशंस की बात करें कि एज वी नो कि हम जितनी भी इनकम अर्न करते हैं ऑल आर टैक्सेबल, लेकिन देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस कि कुछ ऐसी सर्टेन इनकम्स होती है विच आर टैक्स फ्री, जिन पर हमें टैक्स नहीं देना होता। तो सेक्शन 10 हमें वो सब चीजों के बारे में बताता है। इस तरह से हमारे पास एक सेक्शन में कुछ प्रोविजंस, कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा द फाइनेंस एक्ट। तो हर साल जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट का, इंडिया का, वो एक फाइनेंस बिल निकालता है पार्लियामेंट के बजट सेशन में। When the finance bill is passed by both the houses of the parliament and just a minute, just a minute. सॉरी फॉर इंटरप्शन, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे हमारे फाइनेंस एक्ट के बारे में। तो अगर वो पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस के द्वारा और प्रेसिडेंट की अगर उसे अप्रूवल मिल जाती है, तो वो एक फाइनेंस एक्ट बन जाता है। हर साल इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, और फाइनेंस एक्ट के द्वारा भी बहुत सारे लॉ में चेंजेस किए जाते हैं। आपने सुना होगा ना, हर साल टैक्स रेट्स चेंज हो जाते हैं, रिबेट के रेट्स चेंज हो जाते हैं, सरचार्ज के रेट चेंज हो जाते हैं। कभी हम ये सुनते हैं कि ये वाली इनकम और टैक्सेबल होगी, ये वाली नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग जो है हमारे चेंज होते रहे। आगे अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो अगर हम बात करें कि ये जो टैक्सेशन से रिलेटेड हमारे रूल्स हैं, ये सब कौन देता है, कौन बनाता है। तो वी हैव अ डिफरेंट बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्रिएटिंग रूल्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स। तो ये फ्रेम करता रहता है रूल्स को टाइम टू टाइम। और इन्हीं सब रूल्स को अगर हम कलेक्टिवली बोलें तो दीज आर नॉन एज इनकम टैक्स रूल्स। और इन रूल्स के भी आगे सब रूल्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होती है। ठीक है। तो अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो वी मस्ट नो अबाउट दिस रूल्स। आगे हम बात करते हैं सर्कुलर्स और नोटिस की। तो ये सब काम भी हमारा सीबीडीटी का होता है कि जो भी नोटिफिकेशन निकालनी है, सर्कुलर निकालने हैं, जो भी लॉज बने हैं उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने का काम है, वो भी हमारा सारा सीबीडीटी का होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आगे हम बात करते हैं केज लॉज की।
केस लॉस का मतलब क्या हुआ कि जो भी लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो भी केसेस पहले हिस्ट्री में हो चुके हैं, तो वी ऑल्सो मस्ट लर्न दीज केस लॉस, क्योंकि इससे हमारी बहुत अच्छी लर्निंग होती है। इट इज इम्पॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं लिवाई ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं बेसिक थिंग इज इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है ऑन द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ईयर का, ईयर कब शुरू होता है, अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा ईयर है वो शुरू होता है ऑन 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड इट एंड्स विद 31 मार्च ऑन अनदर ईयर। तो अगर हम अभी करेंटली बात करें तो टुडे इज 4 सितंबर। तो अभी हम जिस ईयर में रह रहे हैं, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये जो ईयर है वो कब शुरू हो गया था? 1 अप्रैल से शुरू हो गया था और इसका एंड होगा 31 मार्च 2025। अब जो इस ईयर की हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, तो इस ड्यूरेशन में, इन 12 मंथ्स में, हम जो भी इनकम अर्न करेंगे उसका टैक्स हम पे करेंगे इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब आफ्टर 31 मार्च 2025। ठीक है। यूजुअली इसकी रिटर्न फाइल करने की हमारी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। तो 31 जुलाई तक हम उसका टैक्स पे करेंगे और तब तक नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम टैक्स कंप्यूट करते हैं तो असेसमेंट ईयर होता है, जिस ईयर में हम टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, दैट इज आवर असेसमेंट। और जिस ईयर की इनकम के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, दैट इज आवर प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो ईयर जा चुका है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम की और टैक्स पेएबल की, कि टोटल इनकम क्या है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स जो है, और टैक्स पेएबल क्या है। तो देखो, हमें क्या करना होता है ना, वैसे तो हम इनकम बहुत सारे सोर्सेज से अर्न कर रहे होते हैं। तो हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, जैसे हम बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट अकाउंट्स बनाना जानते हैं, वहां से हमारे प्रॉफिट्स अराइज होते हैं। ठीक है। कोई हमने कोई मोटी इन्वेस्टमेंट की है, सम प्रॉपर्टी या शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, इससे हमें जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन इनकम। हो सकता है यू आर एम्प्लॉय, तो आप सैलरी अर्न कर रहे हो कहीं से, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। आपको कहीं से किसी चीज के लिए कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। इसके अलावा आपको कहीं से कोई गैम्बलिंग की इनकम है, कोई आपकी कोई भी अदर इनकम है, दीज ऑल आर टैक्सेबल। तो टोटल इनकम हमें कंप्यूट करनी पड़ती है पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स लॉज। टोटल इनकम हमारी एक्चुअल में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनकम टैक्स के लॉज के हिसाब से हमें पहले इनकम टैक्स, टोटल इनकम कंप्यूट करनी होती है, और उस इनकम के ऊपर हम टैक्स के रेट्स लगाते हैं। तो देखो, अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं कि किस तरह से हम पहले टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट विल बी कि उसके ऊपर टैक्स कैसे। तो देखो, वी हैव वेरियस स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि इन अ कंट्री, जैसे अभी हम इंडिया में हैं, तो इन अ कंट्री हमारे पास अलग अलग इनकम्स टैक्सेबल होती हैं किसी भी पर्सन से के लिए अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब हमें कुछ लॉज या कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी पर्सन वो रेजिडेंट है इंडिया का या नहीं है। तो इस तरह से हमने अपने पर्सन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वन इज आर रेजिडेंट एंड वन इज नॉन रेजिडेंट। फर्दर हम रेजिडेंट को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी। ये जो पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस का आपका पूरा टॉपिक है, ये हम कवर करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप टुमारो। कल आपकी इसकी जो क्लास रहेगी वो आपकी इसी के ऊपर बेस रहेगी, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ठीक है। तो अभी मैं आपको एज अ स्टेप इसको कवर करा रही हूँ कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस किसी पर्सन का पहले चेक करना होता है, क्योंकि अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से अलग अलग इनकम्स टैक्सेबल होती है। हो सकता है कोई इनकम रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं। क्लियर?
उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 2 है हमारा द इम्पोर्टेंट स्टेप, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। अब एक पर्सन एक 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में, प्रीवियस ईयर के ड्यूरेशन में वो एक से ज्यादा सोर्सेज से इनकम अर्न करता है। सपोज यू आर अ सैलरीड पर्सन, आप एक एम्प्लॉय हो, तो आपकी जो इनकम है वो सैलरी से भी आ सकती है। हो सकता है आपने कहीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वहां से आपको डिविडेंड्स, या कहीं आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से इंटरेस्ट की फॉर्म में आपको इनकम मिल रही है। हो सकता है आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी साइड में करते हो, तो आपकी बिजनेस से भी कोई इनकम आ रही है। ठीक है। और हो सकता है आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची जिसके ऊपर आपको बहुत बड़ा गेन हुआ, तो वहां से भी आपको इनकम मिलती है। तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ सोर्सेज फॉर अ पर्सन इन अ सिंगल प्रीवियस ईयर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, एक पर्सन की जितनी भी इनकम्स है इन अ ईयर, वो हम मेजरली 5 हेड्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मेजर जो हमारे 5 हेड्स हैं, तो फर्स्ट वन इज सैलरी है, जिसके अंदर हम आपकी जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी कॉम्पनसेशन आपको मिल रही है, वो हम सैलरी में लगाते हैं। सेकंड वन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपने, अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह की हाउस प्रॉपर्टी थी, और उस हाउस प्रॉपर्टी से आपसे कोई रेंट रिसीव हो रहा है, तो इस तरह की जो इनकम्स है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में देते हैं पीजीबीपी। तो पीजीबीपी के अंदर आप जैसे नाम देख रहे हो, अगर आपको कोई बिजनेस से या किसी भी तरीके के प्रोफेशन से कोई भी प्रॉफिट अराइज हो रहा है या इनकम हो रही है, तो वो सारी चीजें हम इस हेड के अंदर डालते हैं। अह, अगर हम फोर्थ हेड की बात करें, तो इसका नाम है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का मतलब ही, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, हम जानते हैं कि ऐसे गेन्स जो हमें कभी कभी होते हैं, इट इज नॉट रेगुलर। तो इस तरह के जो गेन्स हैं वो हमारे कैपिटल गेन्स वाले हेड में जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, कोई बहुत बड़ी एसेट सेल की, जिससे आपको कोई भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की इनकम है, तो वी हैव अ फिफ्थ हेड, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। ठीक है। तो यही सब आपका इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। जो भी आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ये हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं इन द कमिंग सेशंस। ठीक है। तो ये सब कंप्लीट करना आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद स्टेप 1 हमारा था, जहाँ पर हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। इन स्टेप 2 वी क्लासीफाई द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर डिफरेंट हेड्स। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, अब इन सब हेड्स के अंदर जितनी भी इनकम एक पर्सन ने प्रीवियस ईयर में अर्न की है, उन्हें कंप्यूट करते हैं कि सैलरी से उसकी इतनी इनकम बन रही है, और हाउस प्रॉपर्टी से उसकी इतनी इनकम बन रही है, कैपिटल गेन से इतनी बन रही है, बिजनेस और प्रोफेशन से इतनी बन रही है, अदर सोर्सेज से इतनी। अब जब हम हर सोर्स से इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं हर हेड में, देन हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। वो चीजें आती हैं हमारे पास, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस। इसका मतलब है कि ये ऐसी इनकम्स है जिस पर हमें टैक्स नहीं देना होता। बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज, एग्जेम्पशंस ऐसी इनकम्स होती है विच आर टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, लेकिन उन्हें हम इनकम कंप्यूट करने में ऐड भी नहीं करते। लेकिन डिडक्शंस कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जिन्हें हम टोटल इनकम कंप्यूट करते हुए ऐड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये हमारी इनकम है, और ऐड करने के बाद वापस से उसे एज अ डिडक्शन माइनस कर रहे हैं। जब हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंडर ईच हेड हम अपने इनकम्स को कंप्यूट करते हैं। अब पांचों हेड की इनकम्स जो आपकी निकल कर आती हैं, उन्हें हम अलग अलग से कंप्यूट करके लिखते हैं। उसके बाद स्टेप 4 में हम लिखते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड, एक्सेट्रा। तो देखो, एज वी जनरली नो कि एक पर्सन खुद की अर्न की हुई इनकम्स के ऊपर इनकम टैक्स पे करता है। बट द एक्सेप्शन इज कि कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो उसके कुछ कनेक्टेड लोगों की होती है, कुछ और अदर लोगों की इनकम होती है, लेकिन उसका टैक्स आपको भरना पड़ता है। ऐसा कब कब हो सकता है, सपोज आपके स्पाउस की इनकम है, सपोज आपके माइनर चाइल्ड की इनकम है। नॉट इन एवरी केस, बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपके स्पाउस की, आपके माइनर चाइल्ड की, या आपके किसी अदर फैमिली मेंबर या फ्रेंड की इनकम आपकी इनकम में कंप्लीट होती है, और उसका आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ये चैप्टर भी हम आगे वाले सेशंस में कंप्लीटली
कवर करना है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया, पहले पांचों हेड रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया पर्सन का, फिर उसके अलग अलग हेड्स की इनकम को कंप्यूट किया, उसके बाद जो अदर पर्सन की इनकम उसके साथ कंप्यूट होनी चाहिए उन्हें हमने ऐड कर दिया। एंड नाउ द फिफ्थ स्टेप इज सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो अगर आपके पिछले वाले प्रीवियस ईयर से पहले वाले सेल्स ईयर्स में कोई अगर लॉसेस हैं तो वो भी आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए भी हम आने वाले सेशंस में कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सारी इनकम्स ऐड कर देने के पास आपके पास जो इनकम निकल कर आएगी उसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों हेड की इनकम प्लस लविंग ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन और जो हमने लॉसेस आगे फॉरवर्ड, इन सबको ऐड करने से यू विल गेट ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम से हमें पहुंचना कहाँ है, टोटल इनकम। तो हम ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस जो है वो माइनस करते हैं। डिडक्शंस हमें बहुत तरीके की मिलती है। आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है ऑन सर्टेन लोन्स, आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है, ठीक है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी हो आप, तो आपको कुछ सर्टेन डिडक्शंस मिलती हैं। ऐसे अलग अलग डिडक्शंस हमारे इनकम टैक्स लॉ के अंदर गिवन है। अगर आप वो डिडक्शंस भी आपको मिलती है तो वो हम यहाँ माइनस करेंगे, और वो डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपकी क्या निकल के आती है, टोटल इनकम आती है, और इस टोटल इनकम के ऊपर ही हम टैक्स कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे स्टेप्स थे। आगे हम बात करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्सेस ऑन टोटल इनकम। अब हम इस टोटल इनकम के ऊपर रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करते हैं। अब रेट ऑफ टैक्स आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रेट ऑफ टैक्स है। एवरी ईयर हमारा रेट ऑफ टैक्स क्या है, चेंज होता रहता है, और अकॉर्डिंग टू द इनकम्स ऑफ डिफरेंट पर्सन हमारे रेट ऑफ टैक्सेस भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ टैक्स आपको पे करने पड़ते हैं। इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ टैक्सेस इन इनकम टैक्स। तो देखो अभी अगर हम बात करें न्यू रिजीम की, वी हैव टू टैक्स रिजीम्स, वन इज योर ओल्ड टैक्स रिजीम एंड वन इज योर न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 0 से 3 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 3 से 7 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, 7 से 10% देना है, 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे आपको 15% देना है, 12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पे आपको 20% टैक्स पे करना है, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो उस अमाउंट पर आपको 30% टैक्स पे करना है। ये है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं। तो किसी भी टैक्स पेई के पास ऑप्शन होता है कि वो न्यू टैक्स रिजीम देना चाहते से टैक्स देना चाहता है या ओल्ड टैक्स रिजीम से देना चाहता है। दोनों में डिफरेंस इज कि न्यू टैक्स रिजीम में आपके बेशक से टैक्स रेट हाई होते हैं लेकिन यहाँ कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलते जो हमने पहले बात की। लेकिन अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पर बेशक से आपके टैक्स रेट कम है लेकिन आपको यहाँ पर, सॉरी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल कि कोई पर्सन पहले इस चीज को कंप्यूट करके देखे कि कौन से रिजीम फॉलो करने से इसका टैक्स बर्डन कहाँ पर कम हो रहा है, डेफिनेटली वो उस रिजीम को फॉलो करे। तो इस तरह से अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम के जो रेट्स हैं दैट ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पर्सन, कि कोई पर्सन 60 ईयर्स से बिलो है, 60 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच में है, या 80 ईयर्स से अबव है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। जो हमने टैक्स लगाया है इसके ऊपर अब हमें सरचार्ज भी लगाना होता है। सरचार्ज का मतलब है इट इज एडिशनल टैक्स बर्डन ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स। तो जिन लोगों की इनकम एक सर्टेन इनकम से ज्यादा चली जाती है, 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, तो उन लोगों को टैक्स रेट से भी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसके भी कुछ रेट्स हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब ये सरचार्ज लगाया जाता है। सरचार्ज जो लगता है ये कंप्यूटेड इनकम टैक्स के ऊपर ही लगता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और चीजें समझ आएंगी आपको। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक होता है रिबेट। रिबेट का मतलब है छूट मिलती है। जिन लोगों की इनकम एक तो स्पेसिफाइड लिमिट तक होती है उन लोगों को रिबेट दी जाती है अंडर 87A, अंडर सेक्शन 87A। ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए अलग रेट्स हैं, न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए अलग रेट्स। अब जब हम टैक्स कंप्यूट कर चुके हैं, सरचार्ज लगा चुके हैं, जिन लोगों को रिबेट मिलनी है रिबेट भी दे चुके हैं, देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेप दैट इज एजुकेशन सेस। यहाँ पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पर 4% टैक्स और कंप्यूट करते हैं ऑन द कंप्यूटेड टैक्स।
फिर उसके बाद है आपके पास एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपने कहीं पर भी एडवांस टैक्स पे किया हुआ है या आपका टीडीएस कटा है तो वो आप यहाँ पर उसकी हम यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं, उसको यहाँ पर मैनेज करते हैं। और अगर आपने कहीं टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल है आपके पास तो वो भी आप यहाँ पर एडजस्ट। ठीक है, इस तरह से दीज आर द स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन। अगर हम बात करें उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो एक हर पर्सन को अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करना है। द फॉर्मेट जो है इसका फाइलिंग का वो भी हमारा सीबीडीटी देता है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। अब हम बात करते हैं आगे कुछ डेफिनेशंस की विच यू ऑल मस्ट नो इन ऑर्डर टू लर्न इनकम टैक्स लॉज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारी पहली डेफिनेशन है दैट इज एसएससी। एसएससी मतलब पर्सन जिसका असेसमेंट हो रहा है, हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो एसएससी क्या है? अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसे कोई भी टैक्स का अमाउंट या कोई और अमाउंट पे करना पड़ता है तो ही इज असेसिंग। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टू कैलकुलेट द टैक्स ऑफ एसएससी। अगर हम एसएससी के टैक्स को कंप्यूट करने का जो प्रोसेस पूरा हमने अभी स्टेप्स पढ़े हैं उन सब प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, पर्सन। पर्सन को टैक्स पे करना होता है, टैक्स पे करना होता है। तो पर्सन से हम केवल इंडिविजुअल की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर बहुत सारी चीजों के नाम देख रहे हो, ऑल दीज आर पर्सन। तो ये सारे पर्सन हैं जो वी ऑल आर लायबल टू पे टैक्स। चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, चाहे आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे आप एक कंपनी हो, कंपनीज को भी टैक्स पे करना पड़ता है। चाहे आपकी कोई फॉर्म हो तो फॉर्म के नाम पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं एओपी या बीओआई। एओपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब किसी भी पर्सन का कोई एक ग्रुप जो कि कलेक्ट हुआ है या इकट्ठा हुआ है टू इन ऑर्डर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। और बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और लोकल अथॉरिटीज को भी टैक्स पे करना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं व्हाट इज इनकम। इनकम क्या है? तो इनकम के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं? आपके प्रॉफिट एंड गेन्स, आपके डिविडेंड्स और कोई और कंट्रीब्यूशन है टू बाय ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपकी इनकम की डेफिनेशन में कवर होती है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो आई विल सजेस्ट यू कि आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू। आप सब ये सब चीजें रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपकी इनकम में इंक्लूड होती हैं। उसके अलावा एक टॉपिक हमारे पास बचता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे अगर हम बात करें कि देयर आर सर्टेन इनकम्स जो आपको उसी साल में पे करनी होती है। वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि हम इनकम कब इनकम के टैक्स हम कब पे करते हैं? इन द असेसमेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर। लेकिन कुछ ऐसी सर्टेन इनकम्स होती हैं जिस पर हमें उसी साल में टैक्स पे करना होता है जिस साल हमने उसे अर्न किया है। तो उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपका शिपिंग बिजनेस है या आप इंडिया छोड़ने वाले हो या आपका कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो इस तरह की चीजें जो है वो उन केसेस में आपको उसी साल में जो है टैक्स पे करना है। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अभी मैं अटेंडेंस ले रही हूँ तो जिसका नाम मैं अनाउंस करूंगी एवरीबॉडी विल से प्रेजेंट। और आवर मीटिंग इज अबाउट टू एंड वेरी सून, तो बी अटेंटिव। ओके, अनम्यूट करके आप बोलेंगे अपना नाम, प्रेजेंट बोलेंगे। आदित्य सजीव, हरप्रीत आनंद, सत्यम रावत, शर्लीन, युग गोयल, अंश गुप्ता, अक्षिता सिंघल, दिशा मल्होत्रा, मान्या जैन, मनन गोयल, संयम, शिफाली भूटानी, आशी कुमारी, आर्यन मेहंदी रत्ता, संयम, चारू सिंघल, निशा, नोबडी इज प्रेजेंट। कोई भी प्रेजेंट नहीं है। मानसी कुमार, दिया गर्ग, वैभव अग्रवाल, खुशी जैन, आस्था परिहार, अनन्या शर्मा, अदिति जैन। आई कैन सी 72 पार्टिसिपेंट्स है ना।
बेटा डोंट कॉल मी, प्लीज कॉल मत कीजिए, वहीं पर अनम्यूट करके मुझे अटेंडेंस ना करें। आई एम नॉट एबल टू पिक योर कॉल राइट नाउ। अदिति जैन, चैतन्य मित्तल, परी, मानव मुखीजा, तेजिल, ज्ञाना, आर्यन भसीन, नव्या। अगर आपका नाम पीछे जा चुका है तो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड अनाउंस योर नेम। नाम बता दो मुझे अपना। नव्या साहनी, भूमि, आदित्य, तमन्ना बंसल, प्रथम साहनी, चारवी, पीहू बिंदल, युगांश, तन्वी,